Is my screen visible to all? Thank you. So first of all, we will open LT Spice, and this is the interface of LT Spice, and then we will create new file by going new schematic, and we will configure. First of all, we will draw the circuit. So we will go to component and type MOSFET. Sorry, NP NMOS NMOS 4. Don't click on simply NMOS. We will use NMOS 4 and place this anywhere in your screen. And then we will take two voltage source, one for input and one for output. So we will type voltage source and we will place here for VGS and one for VDS, and then we will connect this component like this. So the complete circuit is drawn, and we have to give the value of input and output. So can anyone say what is the value we will apply here? V2. Sorry. Say again. 1.8. 1.8 volt. Why? Give reason. Till now I can apply any voltage. As you can see, I have not include 180 nanometer technology. So this is general. So we can put any values like 10 volt, 15 volt, maybe 20 volt. But we will use 180 nanometer technology. So the nominal voltage of VDD of 180 nanometer technology is 1.8. Okay. So for 180 nanometer technology, we will use 1.1 volt. And if we can use 350 nanometer, then the VDD will be different. So first of all, we will have to give the W and L of MOSFET. So first of all, I will include 180 nanometer technology. So to include 180 nanometer technology node, we will save this file in the same folder. So we will save in analog design folder that we have used create earlier. So I will rename this as NMOS character. So the naming convention should be yourself. You can identify the circuit later. So I will use NMOS character as a file name of this circuit, and then I will include that 180 nanometer file. So the syntax is first of all we will write dot include and then the file name. So you can see that the file I will show you later. TSMC 118 dot txt. Dot txt is the extension of that file. I will place it here. We can see that the file name is
tsmc180.txt. If the file name is another, then we have to rename like that. So dot include is the command, and tsmc180 is the file name, and .txt is the extension. So I have included 180 nanometer technology. Then I will choose the L and W. So the minimum length in 180 nanometer technology node is 180 nanometer. So I will use 2L, that is 360 nanometer. And similarly I can define the width. So as of now I will define 1 micrometer. So I have applied 360 nanometer length and width as 1 micrometer, but it is not showing in the display. So I will press Ctrl and then right click and then double click here and then OK. Then the length and width will be displayed in your display. मेरी स्क्रीन सोनी हो रही है? हो रही है हो रही है। ज़ैफ थोड़ा सा आप अपना नेटवर्क अपने एंड पे नेटवर्क चेक कर लें, हो सकता है आपका नेटवर्क वीक हो। भाई मैं देखता हूँ अभी। Then I will apply, first of all I will rename this. So this will be my VDD, not VDD, that is VDS, the voltage across drain and source. Similarly I will rename this. So जब भी आप रीनेम करें ना तो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक V1 एक V। ये जो V1 है V2 है ये सोर्स का नेम है, ठीक है, और जो ये V है सिंपल V ये इसका वैल्यूज़ है। तो बहुत लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में कि यहाँ पे रीनेम कर देते हैं, यानी वैल्यू देने की जगह रीनेम कर देते हैं, तो इसको आप ध्यान रखना। तो जब भी आप रीनेम करें तो ये V1 V2 इस तरह से हो उस पर रीनेम करें, यानी नेम पे कराएं। जैसे आपको दिखेगा इंटर न्यू इंस्टेंस नेम फॉर V1, तो आई विल पुट एज VGS, वोल्टेज अक्रॉस गेट एंड सोर्स। कोई क्वेरी था बीच में? नाजिर भाई W=1U जो लिया है वो रैंडम लिया है या कुछ? हाँ मैंने रैंडम लिया अभी। Okay. अभी डिज़ाइन नहीं कर रहे। देखो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसी रेंज पे आता है, जैसे 1U आता है बहुत बार, तो मैंने ले लिया सिंपली, ठीक है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। Okay. So initially we will apply VDS equal to half of VDD. So VDD is 1.8, so I will apply VDS equal to 0.9, and VGS I will sweep VGS, so put here 0. So every parameter is defined. Now we have to give the command for simulation. So for simulation we will do input characteristics. So I will show you the input characteristics of NMOS. So the right one is the input characteristics of NMOS. As you can see that the VGS is varying from 0 to 10 and ID is vary from 0 to 0.3 milliampere per millimeter. So please ignore millimeter here. So you can see the different plots. So the VDS of the maybe blue color is VDS equal to 0.5. So in this plot there are three parameters. The first parameter is VGS is being switched from 0 to 10, and the second is plotted at different VDS. So VDS will be for one curve 1, 2, 3 like that. So I have initialized the only one VDS 4.9. We will make VDS different later. First of all we will plot simple one curve only, and then we will sweep VGS from 0 to 1 volt. So I have to give the command. The command is .dc and the voltage source name. So the name of the voltage source is VGS. So write VGS and then start values, stop values, and then increment. So I will give 0.1 increment. So place anywhere in your screen. So the command for sweeping is already written, and I have already included .tsmc180 file. And if you write like this, then you have to
save the both characteristics, schematic file and 180 file in the same folder, then it will run. And if your 180 nanometer file is other in other folder, then you have to give complete path. So I will show how to give complete path next. So I will hit the run button. So there is two window. The first window is schematic and the second window is for curve. So I have to collect ID. So first you can see that I have swept a VGS from 0 to 1. So you can see that the VGS is from 0 to 1 in the graph. And if you left click once and then click on visible trace and then plot ID of M1. The name of the transistor is M1. So the ID across M1. I have to click ID across M1. So this is the ID across M1. So we can see that this is the input characteristics of NMOS. So this is similar to diode input characteristics. So we can verify that the input is like as shown in this figure. So we have correctly configured the input characteristics of NMOS transistor. So if we change the value of VDS, then the curve will be slightly different. So how to change VDS? So I have already swept one parameter, one voltage source. Then I will sweep the next simultaneously. And both VGS will be swept in one graph. So the I will right click this and space and again write the name of the second voltage source. So the second voltage source is VDS. And give the start, stop and increment. This is the command. The command you have to memorize. The first of all dot and then DC as in keywords, and the VGS is the name of the sources, and then start, stop values and increment. Because I have already written dot VDS, so I will not write again. So I will start. I will give the name of the second source. As you can see, the second source is highlighted, so the syntax is correct. You can also see the syntax here dot DC, and ignore the square bracket. The source name, that is VGS, start, stop, and the increment, and then source 2. So I have given space and the name of the source 2 is VDS. So I will make three plot. The first plot will be VDS is equal to 0.9, the second is equal to VDS is equal to 1, and the second is VDS is equal to 1.1. So the start will be 0.9 and stop will be 1.1 and the increment will be 0.1. So first 0.9 will be displayed and then 0.1 will add to this, so 1 will be displayed and the second will be 1.1. So the three graph will plot for this syntax. So I will run again and see the three. So here the three graph is already very near, so you cannot distinguish. You can see here the three graph is plotted because I have given the VDS. The increment value of VDS is very close. So if we make changes, we will start with 0.5 and stop with 1 and increment value as 0.2, and again we will run the simulation. Again the curve is very close to each other. Can anyone say for what VDS this blue curve is? It is for 0.5 or 0.7 or 0.9. To understand for what VDS the plot is, the graph is plotted, so we will use the plot function and then go to select step. So as you can see that the three graph is plotted
and step 1, step 2. So this is 4.5, but right now we cannot distinguish for which color VDS is equal to 0.15. So in earlier version it was distinguished by color. For the current version it is not shown by color. So I can understand by this, like I will click on 0.5 and then OK. So the blue color is 4.5. Similarly, if we go to step 2 and control and select both, so the red one is 4.7. Similarly, if we go up, the VDS will be increasing. So if we plot all and then go to step, so we can see that this blue color is 4.5 and this red color is 4.7 and this third almost red is 4.9 and this maybe can anyone identify this color? It is maybe like green. So the green curve is 1 VDS is equal to 1. And so we have successfully plot the input characteristics of MOSFET. यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बता दें. किसी को डाउट है यहाँ तक? किसी को भी दिक्कत नहीं है? ठीक है, फिर चलते हैं. So this is for input characteristics of NMOS transistor. So now we will plot the output characteristics. For output characteristics, what changes I have to do? Anyone guess? कोई बताएं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा? VGS की जगह VDS पे प्लॉट करेंगे. ठीक है. VDS तो ठीक है. For different values of VGS. ठीक है, गुड. So for plotting output characteristics, we need to save VDS. That is, we need to sweep the output voltage, and we have to fix the VGS. So the VGS should be like that. This transistor is in on state. So the VGS should be greater than VTH. So we know that the VTH of this file is around 0.45 volt. So we need to apply the VGS greater than 0.45. So I will apply the VGS of around 0.6. So by applying VGS is equal to 0.06, the NMOS will be in on condition. Maybe it is in linear or saturation, and we have to sweep the VDS. So now I will delete this command. So write .dc and the name of the voltage source to be swept VDS, and start from 0 to 1.8 in the step of 1.1. Okay. So now run the simulation and plot again ID of M1. So we can see this is the output characteristics of NMOS transistor. So we can verify that from this graph we have drawn the correct the curve. So now this is the curve drawn for different VGS. So I will also see the VGS also, and we will plot ID versus VDS for different value of VGS. So the syntax is same. Now I will add another swing voltage, that is VGS, and start from like 0.5 and ending with 1, and the increment will be 0.5. So the 5 plot will be drawn. So again simulate, and we can see that this is the output characteristics of NMOS transistor, and we are familiar with this curve, and we have
seen like thousand times in a course book. So now the problem is same. So how can we distinguish that the different curve is for different VGS? So go to plot setting and so wait 1 minute. हाँ सर ठीक ठीक अच्छा थोड़ा सा मुझे कुछ काम है, एक अर्जेंट काम है, तो मैं 10 मिनट ब्रेक लूँगा, ठीक है? 10 मिनट बाद में दोबारा इस पर आऊँगा, मीट ऑन रहेगा, ठीक है? थोड़ा सा वो ओके ओके सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। जब तक मैं आप लोग को एक टास्क देता हूँ कि आप लोग खुद से जो है ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें, ठीक है, इस मीन टाइम पे। अगर आउटपुट कर लें तो और भी अच्छा है। तो आप अपने लैपटॉप पे ये सिमुलेट करें, इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें। मैं इसको ऐसे ही शो के जा रहा हूँ, ठीक है? तो स्कीमेटिक देख के बना सकते हैं आप।
सो ड्रॉ हो गया आप लोग का? कितने लोगों ने उसको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को अपलोड कर लिया? हैंड रेज कर दें। आई थिंक काफ़ी लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट कर रहे थे और हमने VGS स्वीप करा था, VDS स्वीप करा था 0 से 1.8 तक एंड इन द स्टेप ऑफ 0.1 एंड we have also sweep the VGS from 0.5 to 0.5 to 1. So this is the curve we got from the simulation, and now we have to find out for which VGS there is a different curve. So again we will use step select step and then we will click for 1 and then OK. So this blue color is for 0.5 and then we will select two options and then the red is for 0.6. So we have seen that if we go up then the VGS will be large. So now select all. So this is for 0.5, this is for 0.6, this is for 0.7, 0.8, 0.9 and 1. So the uppermost curve is for VGS is equal to 0.1 and the VDS is from 0 to 1.8 volt. तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दें अभी। तो हमारा जो आज का फर्स्ट पार्ट क्लियर मतलब पूरा हो गया। जैसे हम लोग एनमोस का इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना चाह रहे थे वो हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो जो स्टेप्स है वो सेम होगा पीमोस के लिए भी, ठीक है। बस थोड़ा सा कुछ टेक्निकल बातें जो हमें समझना है, जैसे VGS जैसे हमने इनपुट यहाँ पे अप्लाई किया तो क्या सेम इसी तरह से पीमोस के लिए भी अप्लाई करें या इसका कन्फिग्रेशन अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सेव कर लेंगे। तो मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा भी सेव एज करके पीमोस कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेता हूँ, ठीक है। और इस ट्रांजिस्टर को मुझे रिप्लेस करना है तो इसको मैं कट कर दूँगा और यहाँ पे एक पीमोस ट्रांजिस्टर ले लूँगा, पीमोस 4, ठीक है। अब यहाँ पे एक टेक्निकल एरर ये है कि जैसे जो गेट और सोर्स टर्मिनल जो होता है वो आसपास में होता है, यानी आप देखेंगे गेट के जो जस्ट पास में जो टर्मिनल है वो सोर्स है। और हम लोग जानते हैं कि जो सोर्स टर्मिनल होता है वो पीमोस के लिए जनरली कन्वेंशनल से हम लोग ऊपर रखते हैं, ठीक है ना। यानी जो मतलब ऊपर सोर्स फिर सबसे बॉटम में ड्रेन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रोटेट करना है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लेफ्ट बॉटम पे टाइप Ctrl+R टू रोटेट एंड Ctrl+E टू मिरर। तो इन दोनों कमांड को यूज़ करके हम इसको रोटेट या मिरर कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे रोटेट करना है तो एक बार Ctrl+R प्लेस करूँगा तो इस तरह से दिखेगा, दोबारा Ctrl+R इस तरह से, ठीक है। अब मुझे Ctrl+E प्रेस करना है तो यहाँ पे मेरा जो है ये साइन कन्वेंशनल के हिसाब से आ गया, ठीक है। एक बार प्लेस करके स्केप दबा दो तो ये जो जहाँ पे अभी ये दिख रहा होगा ये सोर्स है और ये ड्रेन टर्मिनल है और ये गेट है, ठीक है। तो पीमोस के लिए हम लोग जो कन्फिगरेशन करेंगे वो थोड़ा सा अलग करेंगे, ठीक है। पीमोस के लिए हमें जो बॉडी टर्मिनल है वो VDD से कनेक्ट होता है। तो नॉर्मल हम लोग यहाँ पे इसको से कनेक्ट करेंगे और जो गेट टर्मिनल है इसको स्ट्रेच करके for PMOS we will make the schematic like this. So this is the VGS and this is VDS and the transistor is PMOS as written in your display. So I will rename V1 as VSG.
and the VDS is same, so you can rename like VSD. देखो डिफरेंट स्कीमेटिक है PMOS के लिए, ठीक है। तो मैं जो है NMOS का ही डुअल फॉर्म ले रहा हूँ। डुअल फॉर्म का मतलब ये है कि जब NMOS में आप VGS लिखते हैं तो PMOS में वैसे VSG लिखते हैं, नाम चेंज करते हैं, और NMOS में आप VDS लिखते हैं तो PMOS में आप VSG करते हैं, ठीक है। तो बाकी चीज़ें सेम होगा। और जो इक्वेशंस है सैचुरेशन का, जैसे NMOS के लिए VDS ग्रेटर देन इक्वल टू VGS माइनस VDS, तो PMOS के लिए उसका क्या हो जाएगा, VSD ग्रेटर देन इक्वल टू VSG माइनस VT, यानी S और G को आपको मतलब सोर्स ऑफ ड्रेन या सोर्स ऑफ गेट जो है इंटरचेंज कर देना है PMOS और NMOS के लिए। ये बातें सबको समझ में आई? ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं जो समझना पड़ेगा। अगर अभी यहाँ पे दिक्कत होगा ना तो आप उसका थ्योरी में भी कंफ्यूज करो और बाद में सिमुलेशन में भी कंफ्यूज करो। तो जो स्कीमेटिक है इस तरह से लेते, इसका हो सकता है आप स्क्रीनशॉट ले लें या फोटो खींच लें, जब भी आपको PMOS का कैरेक्टरिस्टिक्स करना की ज़रूरत हो तो इस तरह से कन्फिगर करेंगे आप। सो नाउ आई विल प्लॉट फर्स्ट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PMOS। सो आई विल शिफ्ट VSG and I will make VSD as fixed. So I will make VSD is equal to 0.9 as of now, and we will shift VGS from 0 to 1. फैसल मार्क मैं आपको आज एक्सेस दे दिया, हो सकता है मैं कल से दोबारा इसमें लेट ना दो, क्योंकि 7:30 से 8:30 बजे हम लोग सेशन रखे थे और 10 मिनट बाकी आप ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई क्लास नहीं है, अटेंडेंस नहीं है कि आपको आना ही ज़रूरी है। अगर आप सीखने की नीयत से हैं तो टाइम से आ जाएंगे, ठीक है, वरना बीच में समझ में नहीं आएगा आपको। तो ये अनाउंस सबके लिए है कि आप थोड़ा सा पंचुअल रहा करें, ठीक है। आप लोगों को सीखने के लिए ये सेशन ऑर्गेनाइज करा रहा है, ठीक है। इसमें कोई रूल नहीं है कि इतना परसेंटेज होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, तो टाइम का ख्याल रखें सब। सो आई विल shift the VGS. So I will first initialize the VGS as 0 and then I will write the command. So the command will be same, dot dc the source name VSG start stop and increment, and I will define the length and width. So length I will keep 360 nanometer and one width is 1 micrometer. Now I will run the simulation and now I will plot the ID. So I will plot IS. अच्छा, किसी को यहाँ पे कोई आइडिया है कि मैं IS प्लॉट क्यों किया, ID क्यों नहीं किया हूँ? क्योंकि वो अपोजिट होते हैं ना, ड्रेन की जगह सोर्स होता है, सोर्स हाँ, की जगह क्योंकि मैं जो टेक्निकल यूज़ कर रहा हूँ सबको उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है। यानी VGS को VSG कर रहा हूँ और VDS को VSD कर रहा हूँ, तो इसलिए ID को मैं IS लेता हूँ, ठीक है। और ID और IS इक्वली होता है, क्योंकि IG 0 होता है, ठीक है ना। तो साइन कन्वेंशनल के हिसाब से आप दूसरा भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा ये साइन कन्वेंशनल है कि मैं VSD और IS प्लॉट करूँगा, ठीक है। तो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, और हमें पता है कि जो MOSFET है वो सिमेट्रिकल डिवाइस है, ठीक है। तो IS और ID सेम होता है। सो दिस इज द प्लॉट फॉर VGS varying from 0 to 1 and the VSD 4.9. So similar I will plot maybe 5 plot for different VDS. So again I will type VSD and 0.5 to 1.2.2. So you can see the different plots. So the plots are very close to each other, so you cannot distinguish. You can zoom out.
plot like VDS is equal to 0.5, 0.2, 1.8, 0.4. So now you can distinguish from here. So to identify for what value of VSD the different curve has been plotted, so you can use the plot setting for select step and then click on one, and then so the lower is for 0.2, and if we go up the VDS value will be increasing. So we will select all. So this is for 0.2 and this is for 1.8. So zoom out this, and we have successfully plotted the input characteristics of PMOS, and the next step will be plotting output characteristics. So for plotting output characteristics we need to see VSD and for different value of VGS. So first of I will apply the bias voltage at gate. So the gate voltage should like 0.6 volt, and we will save VSD. So we will edit this command and dot dc VSD 0 to 1.8.1 and simulate. So I will delete this. So this is the output characteristics of PMOS transistor for VGS is equal to 0.6. Now I will see for different VGS. So I will write like this VGS, and from 0.5 to 1.5.5. So the three graph will be plotted. VGS not found. Sorry, this is typo error. VSG. So three graph has been plotted. So this is for, can anyone say for what value of VSG the uppermost graph has been plotted? 0.5. 0.5. Okay, let's see. 0.5. No, that is for 1.5. Is it okay, Samar? So ठीक. this is for 0.5, this is for 1, and this is for 1.5. Okay, so we have completed our today's task. अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि डॉट इंक्लूड TSMC फाइल का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, मैंने देखा कि आपको मुझे लास्ट असाइनमेंट दिया था RC फिल्टर का, उस पर बहुत लोगों का जो स्क्रीन शॉट था उसमें डॉट इंक्लूड TSMC 180 फाइल लिखा हुआ था। ठीक है, मैंने इंक्लूड किया हुआ था, लेकिन वहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने जो है था, मैं अगर दिखाऊँ वो फाइल RC फिल्टर, यहाँ पे मैंने कहीं पे डॉट इंक्लूड TSMC फाइल ली है। ठीक है, फिर भी ये रन हो रहा है, और यहाँ पे अगर आप इसको हटा देंगे तो ये रन नहीं होगा। रन तो होगा लेकिन उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो अनएक्सपेक्टेड आएगा। ठीक है, तो इस TSMC 180 फाइल का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये टेक्नोलॉजी नोड होता है। इस फाइल को मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये जो फाइल है TSMC 180 नैनोमीटर, ये फाइल है। ठीक है, इस फाइल को हो सकता है आपको स्टार्टिंग में पढ़ने में दिक्कत आ रही हो, लेकिन ये जो इस जहाँ पे जिस लाइन पे स्टार लगा हुआ, ठीक है, तो ये कमेंट है। ठीक है, तो इस यहाँ तक ये इग्नोर करेगा, यहाँ तक, यहाँ से ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ डॉट मॉडल एनमोस 2 बार लिखा हुआ। ठीक है, और उसी तरह से आप बाकी यहाँ भी देखेंगे डॉट मॉडल पीमोस 2 बार। इसका मतलब ये है कि ये जो फाइल है ये एनमोस और पीमोस के लिए ही है। ठीक है, ये रजिस्टर के लिए नहीं है, ये वोल्टेज सोर्स के लिए नहीं है।
यानी ये जो हम एनमोस और पीमोस ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे उसके लिए ये सिर्फ है। तो हमें जहाँ भी एनमोस और पीमोस ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे वहाँ पे हम इस फाइल को इंक्लूड करेंगे। अगर हमें आरसी सर्किट बनाना है, ऑप एम्प सर्किट बनाना है, यानी जहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज़ नहीं होता है एंड मोस्टफेट ट्रांजिस्टर यूज़ नहीं होता, वहाँ पे हम इस फाइल का कोई काम नहीं है। ठीक है, इस फाइल का अब यहाँ पे क्या काम है, जैसे आप आईडी प्लॉट सैचुरेशन रीजन पे जैसी ये जो कर्व है तो सा हैंग हो रहा, ये जो कर्व है ये ग्राफ क्या ऐसे ही प्लॉट हो रहा है? नहीं, इसके पीछे कैलकुलेशन है। ठीक है, हर एक पॉइंट पे करंट का इक्वेशन लग रहा है। ठीक है, जैसे मान लो ये फ्लैट रीजन है। ठीक है, यहाँ पे सैचुरेशन का रीजन लगे, सैचुरेशन वाला फॉर्मूला लगेगा, जैसे आई डी इक्वल टू म्यू सी एक्स बाई टू डब्ल्यू बाई एल वी जी एस माइनस वी टी एच होल स्क्वायर, और अगर आप चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन लें तो 1 प्लस लैम्डा वी डी एस। ये जो कैलकुलेशन है जैसे वी जी एस माइनस वी टी एच, तो हमने वी जी एस तो दिया है। ठीक है, वी टी एच हमने कहीं डिफाइन नहीं करा है, कहीं पे आप देखेंगे सर्किट में वी टी एच है ही नहीं। ठीक है, तो ये वी टी एच आया कहाँ से, ये वी टी एच आएगा इस फाइल से। ठीक है, और इस फाइल में वी टी एच दिखाऊँगा मैं, ये जो वी टी एच है ये वाली वी टी एच है। ठीक है, हालांकि वी टी एच इनिशियल वाला है, जो वी टी एच रियल में यूज़ हुआ है, यानी अलग अलग पॉइंट को वेरिएशन होगा, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। तो जो भी कंपोनेंट चाहिए, पैरामीटर चाहिए इसके आईडी के कैलकुलेशन के लिए, ये सारा पैरामीटर होगा यहाँ से आएगा। ठीक है, अब बाकी चीज़ें जो है ये आपके लिए नया हो। ठीक है, क्योंकि हालांकि मेरे लिए भी सारा इसको आइडेंटिफाई करना तो आसान नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं सी जी एस ओ। सी जी एस का मतलब होता है कैपेसिटर फ्रॉम गेट टू सोर्स। ठीक है, ओ का मतलब है कि इनिशियल। ठीक है, जैसे हम लोग ये थ्योरी में पढ़ते हैं कि वी टी एच का फॉर्मूला होता है, किसी को याद है वी टी एच का एग्जैक्ट फॉर्मूला? थ्योरी में पढ़ा होगा, बताया कोई? मोहम्मद अयूब, वी टी एच का एग्जैक्ट फॉर्मूला पता है आपको? नहीं तो अभी चलिए कोई बात नहीं, वी टी एच का एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है वी टी केटी एच बाई क्यू। के टी वाई क्यू। मॉसफेट के लिए वैलिड है कि बीजेटी के लिए वैलिड है? वो आप इसके लिए बता रहे हैं बीजेटी। मॉसफेट के लिए अलग होता है। ठीक है, वी टी एच फॉर्मूला अगर सर्च करेंगे आप, वी टी एच 4 ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे आपको हाँ, वी टी इज इक्वल टू वी टी नॉट प्लस गामा अंडर रूट 2 फाई एफ प्लस वी एस बी माइनस 2 फाई एफ। ठीक है, ये वी टी एच का जो फुल इक्वेशन ये पूरा है। ठीक है, और वहाँ पे जो वैल्यू है वी टी नॉट दिया हुआ। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट है। तो ये वाला इक्वेशन जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये रियल टाइम पे कैलकुलेशन होगा अलग अलग पॉइंट के लिए। ठीक है, तो इसी कैलकुलेशन के लिए हम लोग इस वाले फाइल को इंक्लूड करते हैं। अगर आप इस फाइल को इंक्लूड ना करें तो वी टी एच को वो 0 मान लेगा। ठीक है, अपने से, तो फिर वो जो है आपका जो सिमुलेशन होगा वो एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो सिमुलेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी फाइल यूज़ करते हैं, और अलग अलग टेक्नोलॉजी फाइल है, इसको टेक्नोलॉजी नोड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी एनालॉग में तो 180 नैनोमीटर वैलिड है, एनालॉग में 180, 130, 90 नैनोमीटर स्टिल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। लेकिन डिजिटल के लिए हम लोग रिसेंट पता है किसी को कि रिसेंट कितना टेक्नोलॉजी नोड यूज़ किया? डिजिटल के लिए जो है अभी टेक्नोलॉजी नोड 3 नैनोमीटर पे आ गया। ठीक है, जो एप्पल वाला जो प्रोसेसर बना रहे हैं वो 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी को बना रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग 180 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी यूज़ करें, यानी हम लोग बहुत पीछे हैं अभी, लेकिन एनालॉग में इतना ही, ये स्टिल वैलिड है। ठीक है, तो डॉट इंक्लूड करने का ये मकसद था, हम लोग हर जगह डॉट इंक्लूड नहीं करेंगे, जहाँ पे पीमोस और एनमोस चाहिए
वहीं पे करेंगे, ठीक है, इसको इंक्लूड। तो ये जो मैंने 4 कर्व बताया, ठीक है, पहला इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PMOS, और एक सिंपल लिया था, और एक डिफरेंट VGS और डिफरेंट VGS के लिए। सेम PMOS के लिए इनपुट आउटपुट, अलग अलग VDS के लिए, अलग अलग VGS के लिए। तो आज का जो सेशन था इन चारों पर ही बेस्ड था। तो यहाँ तक किसी को समझ में ना आया हो, जैसे कुछ मान लो फॉर एग्जांपल 0.6 क्यों है, 0.9 क्यों है, ये भी पूछ सकते हैं आप कि यहाँ L = 360 नैनोमीटर और W = 1 U क्यों लिखे हैं, पूछ सकते हैं ना। तो जल्दी जल्दी अपना सवाल बता दें। फिलहाल मेरे तरफ से तो कंप्लीट हो गया आज का सेशन। आरजू कुछ सवाल? अच्छा, अब मैं सवाल पूछता हूँ आरजू पाठक से, ठीक है। आरजू ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे W = 1 U की जगह 5 U कर दें तो क्या ग्राफ पे कुछ फर्क आएगा कि नहीं आएगा, क्या सेम होगा? भाई कर्व में थोड़ा सा चेंज आएगा क्योंकि आईडी चेंज होगा उसकी वजह से। क्योंकि आईडी का जो इक्वेशन होता है W/L होता है, ठीक है। तो अगर हम W बढ़ा दें तो आईडी ज़्यादा ही होगा ना, बाकी चीज़ें एज इट इज़ है, और L सेम है, W का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो आईडी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और अभी के 5 टाइम्स हो जाएगा, अभी जितना है। इसी वजह से आप अगर L को चेंज करेंगे तो तब भी कर्व चेंज हो जाएगा, ठीक है। और VGS मतलब ID = जो इक्वेशन है सैचुरेशन वाला, उसके जैसे μ1CX/2, तो देखो μ1CX तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो तो ऑलरेडी डिफाइंड है इस 180 नैनोमीटर के, ठीक है। उसको हम यहाँ पे तो देख नहीं सकते हैं μ1CX, लेकिन जो W/L है VGS - VTS, तो VTS भी सेम है। हाँ, हमारे पास जो है 3 फ्रीडम है, एक तो WL और VGS, इन 3 को चेंज करके हम अलग अलग प्लॉट ले सकते हैं। अहेब खान लिख रहे हैं y is VGS taken as 0.64 आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अच्छा अहेब, ये बताइए कि MOSFET का कौन कौन सा रीज़न है, उसका क्या कंडीशन है? अहेब सुनाई दे रहा? नो रिस्पॉन्स। ऑडियो यूज़ कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। कट ऑफ, ट्रायोड एंड सैचुरेशन, सही बात। तो कट ऑफ का इक्वेशन अगर हम NMOS लें तो कट ऑफ का इक्वेशन क्या कंडीशन क्या होता है? कट ऑफ कब होगा NMOS के केस में? ऑडियो यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कोई और बता दें, चलो मैं किसी और से पूछता हूँ, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है। ना, गलत आंसर। अहब खान, आप अपना थ्योरी थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करें। चलो सफक से पूछता हूँ। सफक, ये बताइए कट ऑफ का रीज़न, कट ऑफ होने के लिए क्या इक्वेशंस है, क्या उसका कंडीशन है फॉर NMOS? कट ऑफ के लिए should VGA should be greater than VTH. ये कट ऑफ के लिए है।
आप अपोजिट बोले। कट ऑफ के लिए VGS शुड बी लेस देन VTH, ये बोले थे या Oh, हाँ sorry sir. हाँ आपने उल्टा बोला, ठीक है। VGS जो है वो VTH से कम होगा, ठीक है। जी. यहाँ पे VTH वो वाला इसके वजह खोल देता हूँ मैं एनमोड। यहाँ पे VTH है 0.45, ठीक है। तो VGS जो है 0.45 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये वाला जो है ऑन होगा, ठीक है। और जब हम लोग स्वीप करते हैं तो वो अलग अलग पॉइंट्स के लिए करते हैं, ठीक है। तो अगर इनिशियली अगर ये VGS 0 से स्टार्ट हो तो 0 पे वो बहुत कम वैल्यू देगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट वो जो 0 वैल्यू देगी और वो ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं उसको, लीकेज करंट वाली वैल्यू देगी, ठीक है। तो मॉसफेट को ऑन करने के लिए हमें VGS शुड बी ग्रेटर देन VTH। अब जब VGS आप VTH से ज़्यादा रख रहे हैं तो मॉसफेट ऑन होगा, और फिर जब ऑन होगा तो उसमें भी दो कंडीशन है कि क्या वो लीनियर में है या सैचुरेशन में है, ठीक है। तो फॉर लीनियर रीजन क्या होगा, जो VDS होगा शुड बी लेस देन VGS माइनस VTH। अगर VGS माइनस VTH ज़्यादा है और VDS कम है तो उस केस में जो मॉसफेट है वो ट्रायोड रीजन पे वर्क करेगा, ठीक है। और तीसरा कंडीशन ये है कि अगर VDS इज ग्रेटर देन VGS माइनस VTH तो वो सैचुरेशन पे होगा, ठीक है। तो ये जो बेसिक्स है ये आपको तो आना ही चाहिए हर वक्त, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑन होने के लिए VGS शुड बी ग्रेटर देन VTH, और जब ऑन हो गया तब दो कंडीशन है, चाहे तो वो लीनियर पे या फिर सैचुरेशन पे। तो फिर लीनियर कब होगा, सैचुरेशन कब होगा, तो आप एक इक्वेशन लगाइए कि VDS ग्रेटर देन इक्वल टू VGS माइनस VTH। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा तो सैचुरेशन पे है, अगर ये फॉलो नहीं हो रहा तो ट्रायोड में है, और ट्रायोड में तभी होगा जब VGS मिनिमम VTH से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो these are the condition for different region of MOSFET, ठीक है। इसमें यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई और सवाल कर सकते हैं अभी जस्ट। तो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ जो मैंने आज कराया, ठीक है। सेम रिपीट करना है और L और W का वैल्यू चेंज करना है, ठीक है। तो मैं टास्क दे रहा हूँ, L आप L 1U और W 10U, इसके लिए आप सारा ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है। ये लिख लें, ठीक है। मैं वहाँ पे असाइनमेंट क्रिएट कर दूंगा अभी आधा घंटा बाद। तो बाकी जो ड्रॉ द इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PMOS एंड NMOS ट्रांजिस्टर विथ W इज इक्वल टू 1U, सॉरी लेंथ इज इक्वल टू 1U एंड विथ इज इक्वल टू 10U, ठीक है। इसके लिए आपको चार प्लॉट करना, पहला तो एक ही कर्व वाला, और दूसरा जैसे इस केस में जो है पहले तो आपको सिंपल आउटपुट क्या होगा, VGS फिक्स हो गया और VDS वेरी होगा तो एक ही कर्व आएगा। फिर दूसरा स्टेप क्या है कि VGS को वेरी करें आप, ठीक है। तो उसके लिए जैसे यहाँ पे 0.5 to 1.1 यानी यहाँ पे जो है 5 ग्राफ प्लॉट होगा, तो उस तरह से आप देख लेंगे कितना प्लॉट होगा। अब मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे अगर इसे 0.5 कर दूँ, ठीक है। 0.5 प्लस 0.5 1 यानी अगर इसमें रन करूँगा मैं तो दो कर्व प्लॉट होगा, एक VGS इक्वल टू 0.5 और दूसरा VGS इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है कि कितने प्लॉट चाहिए हमें, ठीक है। और ये तो बेसिक्स है, 0 to 1.8 आप सेव कर सकते हैं। और अच्छा मैंने एक चीज़ और गौर किया था, मैंने VGS जब सेव करा था तो 0 से लेकर 1 तक सेव करा था, 1.8 तक नहीं गया था मैं। तो कोई इसका रीज़न बता सकता है कि मैं क्यों 0 to 1.8 स्वीप नहीं करा VGS? क्या भैया? जब मैं VGS स्वीप करा था तो VGS स्वीप करा था मैं 0 से लेकर 1 तक, 0 वोल्ट टू 1 वोल्ट। और जब मैं VDS स्वीप करता हूँ तो VDS को 0 से 1.8 तक स्वीप कराता हूँ। तो इसका कोई मतलब पीछे का बैकग्राउंड कोई टर्म है या फिर ऐसी मैं सिंपली कर दे रहा हूँ? कोई बता पाएगा इसको डिफरेंस क्या है, क्यों VGS हम 0 से 1 तक ही ले स्वीप करें जबकि 1.8 तक हम कर सकते थे? For the condition VDS should be greater than equals to VGS plus VTH. जनरली क्या होता है कि जो VGS होता है वो 0.6 0.7 के अराउंड होता है, ठीक है। यानी आपको मैंने बताया था शायद कई बार कि VGS होता है क्या है,
VGS होता है VTH प्लस ओवर ड्राइव, ठीक है। तो VTH 0.45 इस टेक्नोलॉजी नोड के लिए फिक्स है, ठीक है, 0.45 एज्यूम कर लो। तो ओवर ड्राइव वोल्टेज ज़्यादा नहीं होता, वो 100 मिली वोल्ट से 300 मिली वोल्ट तक होता है, ठीक है। तो अगर आप अपर लिमिट ले फॉर एग्जांपल 300 मिली वोल्ट, तो 0.45 प्लस 0.3 0.75, ठीक है, इतना आएगा ना। तो ये इतना ही आता है, मतलब VGS 0.75, मैक्सिमम केस 8.8 0.6, तो इतना ही होता है, ठीक है। तो इसलिए 1 से ऊपर जाता ही नहीं है, तो जब ऊपर जाता ही नहीं तो फालतू का क्यों टाइम वेस्ट करो, ठीक है। और VDS स्विप होता है पूरा 1.0 से 1.8 तक होता है। जैसे आप कभी इन्वर्टर प्लॉट करेंगे ना, तो VDS क्या होता है, कभी 0 होगा, कभी 1.8 होगा। तो इसीलिए आउटपुट जो है वो फुल स्विंग होता है, इनपुट VGS जो है वो स्विंग नहीं है। वो VGS जो है बस इतना वोल्टेज अप्लाई करो कि मॉसफेट जो है ऑन हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं जो है VGS 0 से 1.8 पे रखता हूँ। इसका नॉमिनल वोल्टेज होता है 0.5 टू 0.9, 0.8 मान लो, इतना ही होता है, ठीक है। तो ये रीज़न था उसका 1 तक रेस्ट्रिक्ट करने का। तो आई थिंक आज का सेशन ख़त्म हो चुका मेरे हिसाब से। लास्ट किसी को क्वेश्चन हो तो बता दो, वरना लीव कर जाओ। और असाइनमेंट मैं क्रिएट कर दूंगा, जमा कर देना। हाँ, एक मिनट और रुक जाओ। ये जो ट्रेनिंग सेशन है ना, ये आप लोग के लिए है, ठीक है। इसमें किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही क्लब का फ़ायदा, ना अतीक सर का फ़ायदा, ना मेरा फ़ायदा, ठीक है। तो आप लोग पंचुअल रहा करें और जितना कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीखें आप, तो हमारी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगा। क्योंकि मैं भी अपना टाइम निकाल के देता हूँ, ठीक है। मेरा भी मतलब प्लेसमेंट का तैयारी करता हूँ, एमटेक एंट्रांस का भी तैयारी है, तो सारा टाइम निकालता हूँ मैं आप लोग के लिए। तो ऐसा नहीं कि आप लोग जब मन तब जाए ज्वाइन कर ले, जब चाहे छोड़ दें। तो थोड़ा सा बी सीरियस। और मैं देख रहा हूँ कि अटेंडेंस अभी 25 मैक्सिमम गया था, ठीक है, और ग्रुप पे 49 स्टूडेंट्स हैं। तो 2-3 दिन देखूंगा मैं, अगर अटेंडेंस नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि आप सीरियस नहीं है। तो उन जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनको मैं ग्रुप से निकाल दूंगा, ठीक है। और क्योंकि हमें भीड़ इकट्ठा करना मकसद नहीं है, सिखाना मकसद। तो अगर 3-4 लोग भी सीरियसली सीखे ना, तो मैं उतना ही टाइम दूंगा जितना अब दे रहा हूँ। तो जो भी लोग भी सीरियस हो जाएं इसमें, टाइम से ज्वाइन करें, असाइनमेंट बनाएं, सीखें। और जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है वो ग्रुप लीव कर जाएं, उसमें कोई ये नहीं है, ना ही आपका ना ही मेरा हर्ज है, ठीक है। तो बता दें अपने दोस्तों को, जो ग्रुप ज्वाइन करे वो मीटिंग में ज्वाइन करे, वरना वो ग्रुप लीव कर जाए। सो थैंक यू फॉर टुडे सेशन, लीव कर जाए तो। साइकिल नहीं से चाबीटा हराई गई, कल का तेरे सब्जी उब्जी नहीं हुई। माइक तो बने नहीं हो जाए, हैंग ही नहीं से चला अपन